everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll start with chapter 1 of modern Indian history, that is the advent of Europeans in India. So, as you might be knowing, the first Europeans who had entered India were the Portuguese. Okay, so the initial invasion या entry बोल सकते हैं, it was marked by Vasco da Gama's arrival in 1498, and after that only other European powers started to come. Okay, so we'll look at a brief timeline first of all. In 1488, um, Bartholomew Dias, a Portuguese navigator, had rounded the Cape of Good Hope. ठीक है, अफ्रीका में जो है, as far as I know, wait, just let me check once. Okay. हाँ ठीक है, अफ्रीका. Then 1494 में एक ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास हुआ था, which had divided the non-Christian world between Spain and Portugal. ठीक है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास. फिर 1498 में Vasco da Gama had reached Calicut with the help of Gujarati pilot named Abdul Majid. Okay, how will you remember this? Vasco da Gama. So Vasco da Gama was helped by a Gujarati trader and the name was Abdul Majid. ठीक है, आप मस्जिद से लर्न कर लो, है ना. ठीक है, और जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास है, मस्जिद से ही हो जाएगा, अब्दुल मजीद लर्न. एंड फॉर रिमेम्बरिंग द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास यू कैन लिंक इट विद टॉर्टीला खाने की चीज़ होती है ना, उससे यू कैन लिंक इट एंड रिमेम्बर. देन वी हैव in 1500 Pedro Alvares Cabral, a Portuguese navigator, had established a factory at Calicut for spice trade. ठीक है, so Pedro started peddling in spice trade. ठीक है, peddling ऐसे आप लर्न करने के लिए. ठीक है, then in 1501 Vasco da Gama's second visit, Zamorin had refused to expel the Arab merchants. फिर Vasco da Gama turned hostile and attacked Arabs, severed ties with Zamorin and set up a factory at Kannauр. बस इसमें इतना याद रखना है. He had set up a factory at Kannauр. ठीक है, then तो I can also set up a factory, ऐसे वास्को द गामा ने बोला कि I can also set up a factory. ठीक है, then in 1505 Portugal appointed Francisco de Almeida as the governor of India. How will you remember this? Foreign का governor से Francisco, foreign का governor. ठीक है, to crush the Arabs, he faced opposition from Zamorin of Calicut and Mamluk Sultan of Egypt, who was backed by the Venetian merchants. ठीक है, तो उनको opposition किस किस का मिला? Zamorin of Calicut and Mamluk Sultan of Egypt. ठीक है, next देखते हैं Francisco de Almeida's tenure. So he had waged a couple of wars while he was there as the governor. So first of all, first one of those war was the warrior battle बोल सकते हैं. It was the Battle of Chaul. It was a naval clash off the Konkan coast, और Mamluk Gujarat fleet defeated the Portuguese and they took shelter in Diu, Daman and Diu का Diu. ठीक है, so ये आपको याद होना चाहिए. बैटल ऑफ चॉल में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वर्सेस, मतलब पोर्चुगीज वर्सेस ममलुक गुजरात फ्लीट, है ना. ममलुक वाज द ममलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट, है ना. एंड दे वर ऑलरेडी, मतलब पोर्चुगीज और ये जामोरिन ऑफ कैलिकट और ममलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट, दे वर ओरिजिनली अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है, ऐसे करके वर्सेस लिख के जामोरिन, कैलिकट और ममलुक
सुल्तान ऑफ इजिप्ट। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेम्बर दिस। ठीक है, उसके बाद में फ्रांसिस्को, हाँ, फिर बैटल ऑफ ड्यू क्या हुआ था? फ्रांसिस्को एल डी अल्मेडा severely avenged the 1508 वाला defeat by crushing the same combined fleet, thus establishing Portuguese naval supremacy in Indian Ocean। ठीक है, और फिर थर्ड क्या आया? अल्मीडाज ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टा सिस्टम। It has that policy had emphasized naval supremacy of the Portuguese, and the Cartas system operationalized maritime control through compulsory sea passes। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बस एक चीज़ करा गया था कि इफ़ यू वांट टू पास थ्रू दिस एरिया ऐसे टोल देना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, और सी कार्टास से कंट्रोल, यू कैन लिंक इट टू कंट्रोल। ठीक है, वो इस कंपल्सरी सी पासेस थे, उसमें से यू whoever wanted to pass through it had to pay some taxes or something like that। और नेवल सुप्रीमेसी के लिए अल्मेडाज ब्लू वाटर पॉलिसी, ही बेसिकली फॉट टू बैटल्स। तो ABCD होता है ना उसका, C and D, बैटल ऑफ चॉल एंड बैटल ऑफ ड्यू। he won the battle of Dew but he had lost the battle of Chol। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वी विल डू दीज क्वेश्चन आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग द थ्योरी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, अ कंपैरेटिव एनालिसिस देख लेते हैं। सो वी विल बी कंपेयरिंग बिटवीन द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स: पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डैनिश एंड फ्रेंच। ठीक है, first of all, we will begin with the entry and background of each of these। So, जो Portuguese थे, they were the first Europeans to arrive in India। ठीक है, इनको लर्न ऐसे करते हैं, इन लोगों का जो क्रोनोलॉजी है ना कि कब कब एंटर हुए थे, PDEF करके करते हैं। सो सबसे पहले पोर्चुगीज़, देन डैनिश, फिर इंग्लिश और लास्ट में फ्रेंच हैड कम टू इंडिया। ठीक है, सो दिस थिंग, डैनिश नहीं, डच वाले आए थे। सो सबसे पहले पोर्चुगीज़, फिर डच आए, फिर ई मतलब कि इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स आए। रुको, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, एज फार एज आई नो PDEF करके होता है, बट देयर सीम्स टू बी सम इशू ओवर हियर, देख लेते हैं। सो पोर्चुगीज़ 1498 से यहाँ पे है ना। Vasco da Gama had first come to India and they focused on seaborne trade and religious expansion। Then जो Dutch थे, they entered via Dutch East India Company and they had purely commercial motives। ठीक है, ये पता होना चाहिए। कब 1602 में आए थे, तो मोस्ट ऑफ देम वर हैड एंटर्ड फॉर कॉमर्स ओनली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was formed in 1600 and they gradually shifted from trade to territorial power। है ना, ब्रिटिशर्स का पता ही हमें। फिर डेन्स, they were a minor European power, they were trade oriented with limited territorial ambitions। फिर एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, they had aimed to counter the British influence। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सी द फ्रेंच वर द लास्ट वंस टू कम टू इंडिया। बाकी इन लोगों का थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है, जो पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट वंस एंड द फ्रेंच वर द लास्ट वंस। ठीक है, फिर ये ब्रिटिश, डच और डेन्स, तो BDD कर लो या तो। ठीक है, ये पता होना चाहिए। देन कैपिटल और मेन हेडक्वार्टर्स इन इंडिया, सो पोर्चुगीज़ का क्या था? गोवा, है ना, तो पता ही हमें ये। तो इसको ये लोग एस्टाडो दा इंडिया बोलते थे कि इंडिया में हमारा वो क्या है, स्टेटस क्या है। तो वैसे करके यू कैन रिमेंबर स्टेटस क्या है इंडिया में, तो एस्टाडो दा इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है डच। डच वर लोकेटेड एट पुलिकाट एंड लेटर नागापट्टिनम, है ना। तो डच DU है, तो पुलिकाट U वाला। ठीक है, और पुलिकाट का P से यू गेट नागापट्टिनम। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है ब्रिटिश। ब्रिटिश वर सेंटर्ड एट कैलकटा, है ना, लेटर दे वेंट टू दिल्ली अंडर द क्राउन रूल, है ना, ये पता है हमें।
देन डेन्स है ना, डैनिश जो थे, ये लोग ट्रांकीबार में थे, तमिलनाडु। ठीक है, तो इनको कैसे हाउ विल यू रिमेंबर इट? देखो, डैनिश है तो डैनिश को डेन्स बोलते हैं। ग्रेट डेन क्या होता है? एक डॉगी का वैरायटी होता है। ठीक है, तो आप ऐसे अज्यूम करो कि तमिलनाडु में डॉगीज़ काफ़ी मिलते हैं, है ना? ट्रांकीबार से यू कैन रिलेट दिस। ठीक है, देन फ्रेंच हमें पता है पौंडीचेरी में, इनफैक्ट अभी तक वहाँ पे वो अभी तक तो नहीं, मतलब हाँ, इट वाज अ फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी। ठीक है, पुडुचेरी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इंडियन रूलर्स। सो इंडियन रूलर्स एट द एंट्री और एक्सपेंशन फेज। सो फॉर पोर्चुगीज देयर वाज जामोरिन ऑफ कैलिकट, है ना, और कृष्णदेव राय भी थे विजयनगर में। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ये सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, एक तो जामोरिन है कैलिकट में और कृष्णदेव राय हैं। देन डच के टाइम पे देर आर मुगल सूबेदार्स। ये ईयर जो है ना, उससे यू विल गेट एन आइडिया। देखो 1498 में ये लोग आए थे, है ना, तो वहाँ पे विजयनगर एम्पायर चल रही थी तब। ठीक है, सो कृष्णदेव राय। उसके बाद ये बाकी के लोग 1600s में आए हैं। 1600s में वी हैड प्रॉपर टाइप मुगल रूल, है ना, तो उन बाकियों में सब में मुगल्स रहेंगे। डच में देर आर मुगल सूबेदार्स। ठीक है, लोकल रूलर्स इन कोरोमंडल एंड बंगाल। देन जहाँ ब्रिटिशर्स के टाइम पे जहांगीर वो फरमान वगैरह लिया था, है ना, एंड लेटर वीक मुगल सक्सेसर्स। देन डेन्स कहाँ पे? तमिलनाडु में आए थे, ट्रांक्यूबार, है ना। यहाँ पे क्या, थंजावुर नायक से। तो ये टी यू कैन कनेक्ट एंड रिमेंबर, है ना, टी यहाँ पे भी टी, तमिलनाडु ट्रांक्यूबार थंजावुर नायक्स। ठीक है, फ्रेंच 1664 में आए, तो वहाँ पे क्या चल रहा था? औरंगज़ेब का टाइम चल रहा था। ठीक है, अर्ली फेज ऑफ औरंगज़ेब, है ना। एंड नेक्स्ट देखते हैं की ट्रीटीज़ एंड परमिशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोर्चुगीज़ थे, उन्होंने दे हैड अ ट्रीटी विद द सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है, 1510 में, एंड कैप्चर ऑफ गोवा हुआ था इस टाइम पे। ठीक है, तो बीजापुर के सुल्तान के साथ में दे हैड अ ट्रीटी। हाउ विल यू रिमेंबर इट? बीज मतलब सीड। सो सिंस दिस वाज द फर्स्ट ट्रीटी एंड इन फैक्ट पोर्चुगीज वर द फर्स्ट वंस टू एंटर इंडिया, तो आप ऐसे बीज से लर्न कर लो कि इन्होंने सबसे पहले बीज लगाया। ठीक है, सो सीड, है ना। नेक्स्ट है डच हैड वेरियस लोकल ट्रीटीज ऑन कोरोमंडल एंड बंगाल। देन ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश क्या हुआ? They had a Mughal farman and it was issued to Sir Thomas Roe by Jahangir. ठीक है, so this is important to remember, मुगल फरमान बाय सर थॉमस रो, है ना। देन डेन्स में ट्रीटी 1620 में हुआ था, ट्रीटी विद तंजावुर नायक। ठीक है, तो तंजावुर नायक वॉज प्रेजेंट देयर, तो उन्हीं के साथ में ट्रीटी हुआ। देन फ्रेंच का क्या हुआ? ट्रीटीज़ विद कर्नाटिक रूलर्स अंडर ड्यूप्लेक्स। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी लुक एट द डिफरेंट फैक्ट्रीज बैक देन, है ना। तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ है, यहाँ पे लिख देती हूँ। पोर्चुगीज़ है, फिर डच है, फिर ब्रिटिश है, फिर डेन्स एंड फ्रेंच, है ना, ये है डेन्स। ठीक है, सो फैक्ट्रीज़ में सबसे पहले वी हैव पोर्चुगीज़ के टर्म्स में, दे हैड फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट कैलिकट इन 1500। ठीक है, उसके अलावा कन्नानौर में, देन कोचिन, गोवा, बसेन, दियो, इन सब जगहों पे। ओनली द फर्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, कैलिकट में 1500 में बनाया था। ठीक है, देन जो डच थे, दे हैड फर्स्ट सेटअप अ फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन 1605। ठीक है, ब्रिटिश ने भी मसूलीपट्टनम में फर्स्ट बनाया था, विच वॉज अ टेम्प्रेरी प्लेस, एंड परमानेंट फर्स्ट चीज़ कहाँ पे? सूरत में बनाया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? ये डेन्स एंड दे वर सेंटर्ड अराउंड ट्रांकीबार ओनली, तो वहीं पे दे मेक द फर्स्ट जो भी कंपनी फैक्ट्री। ठीक है, और फिर
लास्ट में फ्रेंच, फ्रेंच लोगों ने कहाँ बना दिया, सूरत में। ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे, देखो दो दो कॉमन है, जो ब्रिटिश वाला है ना, इट हैज़ टू थिंग्स कॉमन विद टू डिफरेंट इन्वेडर्स। तो ब्रिटिशर्स का सबसे पहले मासूलीपट्टनम था, वो डच जैसा सेम है। ठीक है, इवन डच वर फ्रॉम मासूलीपट्टनम ओनली, है ना, मतलब दे हैड मेड अ फैक्ट्री एट दैट प्लेस। और फिर ब्रिटिशर्स ने सूरत पे बनाया, सूरत पे और किसने बनाया था, फ्रेंच ने। ठीक है, तो ये भी हो गया। कैलिकट, मासूलीपट्टनम, फिर से एक और मासूलीपट्टनम, ट्रैंक्विबार और सूरत। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके अलावा वी लुक एट द नेचर ऑफ एक्सपेंशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। कैलिकट को कैसे लर्न करेंगे, पोर्चुगीज से ये कल ही आ गए थे, मतलब ये सबसे पहले आए तो कल ही आ गए थे ये। ठीक है, उससे लर्न हो जाएगा, है ना। उसके अलावा क्या है, डच, डच से मासूलीपट्टनम, सो डच में यू है और मासूलीपट्टनम में भी है, तो वैसे यू कैन रिमेंबर। देन ब्रिटिशर्स का आपको पता ही है, डच और फ्रांस वाला से सिमिलर है, सो मासूलीपट्टनम एंड सूरत। देन डेन्स, डेन्स हमें पता है ट्रैंक्विबार में ही थे, तो वैसे लर्न हो गया। देन फ्रेंच का सूरत पता है। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रेंच लोग की सूरत बहुत अच्छी होती है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना। अगर आप देखेंगे दे हैव वेरी गुड फैशन सेंस एज वेल, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ एक्सपेंशन, है ना। सो जो पोर्चुगीज़ थे दे रिलाइड हेविली ऑन नेवल पावर एंड कोर्सिव ट्रेड मोनोपोली में दे यूज्ड टू बिलीव इन। देन जो डच थे वो ट्रेड मोनोपोली करते थे, है ना। देन मोस्ट ऑफ देम इंडल्ज्ड इन मोनोपो मतलब ट्रेड मोनोपोली इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, जो फिर ब्रिटिश है इन्होंने क्या करा, दे आर कमर्शियल पावर्स, फिर उसके बाद में दे बिकेम पॉलिटिकल और फिर इम्पीरियल पावर बन गए थे। देन डेन्स अगेन कमर्शियल एनक्लेव्स, जो फ्रेंच थे दे हैड इंडल्ज्ड इन मिलिट्री एक्सपेंशन अंडर डुप्लेक्स। ठीक है, डुप्लेक्स वाज वन ऑफ देयर कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स। ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे, डुप्लेक्स मतलब दो मुंह का ऑनर, हैविंग टू फेसेस, है ना, मतलब धोखा दे के मिलिट्री एक्सपेंशन कर लिया उन्होंने। ठीक है, टू फेसेस से यू कैन रिमेंबर डुप्लेक्स। ठीक है, नाउ वी लुक एट द वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो सबसे पहले वी हैव क्रॉप्स, क्रॉप्स में जो पी पी पोर्चुगीज़, फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रांस। ठीक है, सो जो पोर्चुगीज़ थे ये लोग क्या क्या क्रॉप्स लाए थे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये सवाल पूछ लेते हैं। सो दे ब्रॉट टोबैको, तो ये जो बेकार वाली चीज़ है सबसे इंडिया में, टोबैको दैट वाज ब्रॉट बाय पोर्चुगीज़, जो सबसे फर्स्ट इन्वेडर्स थे, दे देमसेल्व्स ब्रॉट टोबैको इन इंडिया। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। देन कैशू नट्स लेके आए, पाइनएप्पल, पपाया, गुआवा, ये सब। इसके अलावा इन रिलीजियस टर्म्स दे वर जेसूट्स। ठीक है, दे वर लेड बाय फ्रांसिस जेवियर एंड कल्मिनेटेड इन द गोवा इंक्विजिशन इन 1560। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जेसूट्स थे ये लोग एंड दे वर लेड बाय फ्रांसिस जेवियर। देन इसको देखो लर्न कर लेते हैं, जेसूट्स मतलब वही क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ हैं ये, है ना, और फ्रांसिस जेवियर से रिलेटेड थे। तो इनको कैसे लर्न करेंगे, फ्रांसिस, देखो सेंट फ्रांसिस करके ऐसे बहुत सारे देर आर वेरियस कॉन्वेंट स्कूल्स, तो वैसे यू कैन रिमेंबर कि कॉन्वेंट स्कूल का नाम क्या होता है, फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस, तो वैसे। ठीक है, नेक्स्ट है डच। सो डच वर प्रोटेस्टेंट्स एंड दस दे हैड नेग्लिजिबल मिशंस, तो जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं दे आर फेयरली लिबरल। ठीक है, लिबरल सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो वो ऐसे ज़्यादा मिशन वगैरह नहीं करते कि मिशन, जैसे दे डिड नॉट इंडल्ज इन कन्वर्टिंग पीपल टू क्रिश्चियनिटी ज़्यादा। ठीक है, देन इंग्लिश, इंग्लिश टी और कॉफ़ी एक्सपेंशन, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंग्लिश। ठीक है,
देन ब्रिटिश बैक प्रोटेस्टेंट मिशनरी एक्टिविटीज़ वर ऑल्सो गोइंग ऑन, ठीक है। देन डैनिश को देखते हैं। डैनिश इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, डैनिश शेल्टर्ड ब्रिटिश बैप्टिस्ट मिशनरीज फॉर सेरमपोर मिशन, ठीक है। तो ये याद करना है हमको। देन इन टर्म्स ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच ने भी जिसूट्स भेजे थे एंड दे एस्टैब्लिश्ड सिग्निफिकेंट मिशनरी वर्क। सो मोस्ट ऑफ देम एज यू कैन सी दे इंडल्ज इन मिशनरी वर्क, है ना। इसमें बस डच थे जो नहीं करते थे, ठीक है। डच वर डिसेंट पीपल, ठीक है, यू कैन रिमेंबर दिस, है ना। सो डच डिड नॉट इंडल्ज इन ऑल ऑफ दिस। बाकी सारे, ठीक है। और इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग, डैनिश को सेरमपोर मिशन से लिंक करना है ना। तो DA डैनिश, तो डैनिश को हमने सर पे बिठा लिया, वैसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। सर पे बिठा लिया डैनिश को, दानिश, है ना। देन ऐसे दानव, दानव को सर पे बिठाया, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर इट, है ना। देन यू हैव की गवर्नर्स और लीडर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ देयर देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्के, है ना। ही हैड कैप्चर्ड गोवा इन 1510 और फिर उसी का ट्रीटी विद बीजापुर सुल्तान, ठीक है। तो वो इन्हीं के बाद हुआ था। अल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्के हमको याद याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फोंसो को आप कैसे अल्फोंसो मैंगो से भी लिंक कर सकते हैं, है ना। और वैसे लिंक करके लर्न कर लो कि अल्फोंसो मैंगो, लेट मी जस्ट चेक इफ देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्फोंसो एंड मैंगो एंड पोर्चुगीज़। देखो हाँ, ये जो है ना अल्फोंसो मैंगो, इट हैज़ एक्चुअली बीन नेम्ड आफ्टर अल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्के बिकॉज जो अल्फोंसो मैंगो को ना डेवलप किया था, ये पोर्चुगीज़ लोगों ने ही डेवलप किया था यूजिंग ग्राफ्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि अल्फोंसो मैंगो से ये आप लर्न कर सकते हो इनका नाम, ठीक है। देन नेक्स्ट है फॉर द डच, द की गवर्नर वॉज जैन पीटरसून, है ना। जैन पीटरसून कौन, कौन, एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन डच ईस्ट इंडिया कंपनी कंसोलिडेशन के में ही हैड प्लेड अ मेजर रोल। देन ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा हमको। देन वेट अ सेकेंड, देखो जो डच होते हैं ना वो वहाँ के लोग रहते हैं। नेदरलैंड्स है ना, नेदरलैंड्स के लोगों को डच बोलते हैं। एंड वी हैव डेन्स, डेन्स आर द पीपल फ्रॉम डेनमार्क, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। डेनमार्क जो है, ग्रीनलैंड, वो वाला एरिया के लोगों को डेन्स बोलते हैं एंड डच आर फ्रॉम नेदरलैंड्स, ठीक है। सो इसको करते हैं, देखो जो डच है कौन है, जैन पीटरसून कौन, और डेन्स में कौन है, ओव शेड, ठीक है, डेनमार्क। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो इसको ऐसे लर्न कर लो। देखो डेनमार्क के पास में क्या है, वो नॉर्वे और वो वाला रीजन है, फिनलैंड। वहाँ पे क्या होते हैं बहुत सारे, देर आर fjords, है ना। तो वहाँ जे यहाँ पे यूज़ हो रहा है fjords में, और यहाँ पे ओ जेड में भी जे यूज़ हो रहा है। सो दैट वे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस कि डेनमार्क के थे ओ जेड, ठीक है। और ये नेदरलैंड्स वाले क्या थे, जैन पीटरसून। इसको कैसे लर्न करोगी, नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स कहाँ पे है, वो फ्रांस वगैरह के साइड में ही है ना। एकदम साइड में नहीं है, मतलब वहीं पास में है, ठीक है। सो जनवरी में वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। देन इंग्लिश, इंग्लिश के लिए क्या है यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ही वॉज द मेन कंसोलिडेटर, ठीक है। तो ये हमें पता ही है, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन। देन डुप्लेक्स, डुप्लेक्स had pioneered Indian alliances and he was a precursor to the subsidiary system, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डुप्लेक्स वॉज फॉर द फ्रेंच, है ना। हमने ऊपर लर्न करा था कि हैड
टू फेसेस बिकॉज ही स्टार्टेड मतलब मिलिट्री कैंपेन इन इंडिया। ठीक है, तो टू फेसेस डुप्लेक्स। ठीक है, तो ये हो गए। अभी वी लुक एट द नेक्स्ट थिंग, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स और टर्निंग पॉइंट्स, है ना। तो ये डच है, ये इंग्लिश, देन डेन्स एंड फ्रेंच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोर्चुगीज़ के लिए द मेजर टर्निंग पॉइंट वाज द नेवल डोमिनेंस विच दे हैड अचीव्ड इन इंडियन ओशन। ठीक है, तो बहादुर शाह हैड सरेंडर्ड ड्यू ऑल्सो टू देम, सो दिस पीरियड वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर देम। ठीक है, बहादुर शाह हैड सरेंडर्ड ड्यू। फिर जो डच थे, दे वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ चिंसुरा एंड दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट फॉर देम। और उसी को उनका जो एक्सपेंशन था दैट वाज कर्व्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे? डच, डच के चिन के सुराग, चिन में सुराख कर दिया इंग्लिश ने। ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर। और यहाँ पे यू है और डच में भी यू है, तो दैट वे यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस एज वेल, है ना। डच में भी यू है और चिंसुरा में भी यू है। देन इंग्लिश, इंग्लिश में वही, ये तो पता है हमको, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, दे वर द मेजर टर्निंग पॉइंट्स। फिर डैनिश के लिए कौन था? सोल्ड सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिश। हाँ, तो इन्होंने क्या करा कि ट्रैंक्विबार में थे, दे वर प्राइमरली सिचुएटेड, है ना। तो दे गॉट फेड अप और उन्होंने दे सोल्ड एंड वेंट अवे। ठीक है, ब्रिटिश को बेच के चले गए 1845 में। दैट इज बिफोर द सेकेंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, 1857 से थोड़े साल पहले। देन जो फ्रेंच थे, उनका क्या टर्निंग पॉइंट था कि कर्नाटिक वॉर्स जो हुए थे फ्रेंच और ब्रिटिश में, सो दे लॉस्ट दोज वॉर्स एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर देम। और उस उनका फिर एक्सपेंशन वाज कर्व्ड। ठीक है, सो चिन सुरा लर्न करना है डच के लिए, है ना, चिन में सुराख कर दिया। फ्रेंच के लिए कर्नाटिक वॉर्स, और जो पोर्चुगीज़ थे वो ओवरऑल नेवल डोमिनेंस दे हैड एस्टैब्लिश्ड, है ना। और हमने यहाँ पे भी देखा ही था, रुको, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे वी हैड रेड के ये अच्छा यहाँ पे दिया नहीं अच्छे से, बट जस्ट रिमेंबर बहादुर शाह जो थे ना, हाँ, बहादुर शाह हैड सरेंडर्ड ड्यू एंड दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट। ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस पोर्शन प्रॉपर्ली। ठीक है, सो पोर्चुगीज के सामने वेरियस, मतलब दे वर ऑल्सो क्वाइट पावरफुल, है ना, बस इंग्लिश ही नहीं थे, पोर्चुगीज वर ऑल्सो वेरी पावरफुल। इनके सामने जो बहादुर बहादुर लोग थे, दे ऑल्सो सरेंडर्ड। ठीक है, बहादुर कौन है? बहादुर शाह। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ वी लुक एट द डिक्लाइन एंड एग्जिट। सो जो पोर्चुगीज थे, ओवरऑल उनका फिर डिक्लाइन हो गया। एक तो इंग्लिश, दे टुक ओवर द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, है ना, तो उससे दे कुडंट एक्सपैंड मच। और apart from that, they declined due to a weak economy and British dominance. And however, they retained Goa till 1961. So this is important to remember. कि 1961 तक गोवा was with these Portuguese only. ठीक है, कैसे लर्न करेंगे? गोवा 61 का जो 6 है उसको अगर इन्वर्ट करेंगे तो जी जैसा लिख रहा है ना, तो उससे यू कैन रिमेंबर गोवा। ठीक है, और 61 में और क्या हुआ था इम्पोर्टेंट चीज़? इंडो चाइना वॉर। ठीक है, तो उससे भी लिंक कर लो कि इंडो चाइना वॉर के बाद फिर सब लोग थक के गोवा जाने का मन हो रहा था सबको, तो दैट में ऑल्सो यू कैन रिमेंबर। देन डच, सो उनका पावर डिक्लाइन हुआ आफ्टर ब्रिटिश नेवल सुपीरियोरिटी। ठीक है, देन वी हैव द इंग्लिश, इनका क्या हुआ? दे एंडेड विद इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 में, ये पता है हमको। देन जो डैनिश थे, इन्होंने वॉलंटरली दे हैड विड्रॉन और सोल्ड देयर टेरिटरीज टू द ब्रिटिश। ठीक है, देन फ्रेंच, फ्रेंच का कब डिक्लाइन हुआ? कर्नाटिक वॉर्स के बाद में, है ना, डिक्लाइन आफ्टर 1763 एंड दे फॉर्मली एग्जिटेड इन 1954। सो पुडुचेरी में थे, दे वर स्टेशन, वहाँ से दे फॉर्मली एग्जिटेड इन 1954।
हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर, इसको हमको पुडुचेरी से लिंक करना है ना। सो पुडुचेरी या पौंडीचेरी, सो पुडिंग से लिंक करते हैं कि 54 की एज पे जाके मेनी पीपल लाइक पुडिंग, है ना। पुडिंग स्वीट का वर्जन, मतलब एक स्वीट डिश टाइप होती है। 54 की एज पे मेनी पीपल लाइक पुडिंग बट दे आर नॉट एबल टू ईट इट बिकॉज वो फिर तब तक तो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं 54 तक, है ना। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है ओवरऑल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, देखते हैं। सो पी फॉर पोर्चुगीज का क्या होगा, दे ओपन इंडिया टू यूरोपियन कॉलोनियल एरा, हाँ दे वर द फर्स्ट इन्वेडर्स, सो दे ब्लेंडेड ट्रेड रिलीजन एंड फोर्स। फिर इनका क्या है, दे डेमोन्स्ट्रेटेड द लिमिट्स ऑफ ट्रेड ओनली कॉलोनियलिज्म फॉर डच। इंग्लिश ने तो लॉन्ग लास्टिंग कॉलोनियल स्टेट बना लिया था, फिर डैनिश ने दे हैड ओनली अ सिम्बॉलिक रोल, हाउएवर दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मिशनरी हिस्ट्री, वो सेरमपोर मिशन इनके अंदर था ना, सो दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं है डैनिश का। देन फ्रेंच, they showed that military political ambition without naval dominance fails, ठीक है। So this thing you need to remember. Now these are some of the colonies settlements उनके अंदर जो जो थे, तो यहाँ पे दिया है, वैसे हमने बस एक ही करा है ना, वैसे ओवरऑल दिया, बस एक बार देख लेते हैं इनको भी। देखो पोर्चुगीज़ का कैलिकट तो हमें पता है कि यहाँ पे दे स्टार्टेड, उसके अलावा कन्ननौर, कोचिन, है ना, गोवा, बसेन, दीव, ठीक है, ज़्यादातर वेस्टर्न कोस्ट पे सब कुछ। फिर जो डच थे उनका क्या, पुलिकैट हमें पता है कि मासूलीपट्टनम पे दे हैड स्टार्टेड, फिर पुलिकैट में भी थे, पुलिकैट में इनफैक्ट दे हैड एंटर्ड फ्रॉम पुलिकैट ओनली, मेन हेडक्वार्टर वाज पुलिकैट, और फिर लेटर ऑन इट वाज नागपट्टनम, है ना, डच का। तो वो पता होना चाहिए। सूरत, चिनसुरा, चिनसुरा बैटल ऑफ चिनसुरा में दे हैड लॉस्ट, है ना, अगेंस्ट इंग्लिश। फिर कोचिन, कोचिन भी था इनके पास में। फिर मतलब फैक्ट्रीज थे इधर। देन इंग्लिश का तो अब हर जगह ही है, बट ब्रोच देख लो, मद्रास, हुगली, बॉम्बे, कैलकाटा, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस। जो डेन्स थे, है ना, जो डेनमार्क वाले लोग थे वहाँ, उनका एक तो ट्रैंक्विलार में कैपिटल है, सेरमपोर में दे हैड अ फैक्ट्री, ठीक है, और हमें पता है सेरमपोर मिशन भी इनसे रिलेटेड है ना। देन फ्रेंच, फ्रेंच कहाँ पे, सूरत में दे हैड स्टार्टेड, है ना, और किधर किधर पे हैं ये लोग, चंदर नगौर, चंदर नगौर, पुडुचेरी पता है, पौंडीचेरी, माहे, यानम, कराईकाल, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस फ्रेंच फैक्ट्रीज वर देयर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डू नॉट हैव टू बॉदर विद दिस टू मच, ठीक है, हल्का हल्का पता चल गया, दैट मच शुड बी इनफ। नेक्स्ट वी लुक एट बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। सो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, बक्सर 1764, दीज आर वेरी कॉमनली नोन डेट्स, ठीक है। दीज वर डिसाइसिव माइलस्टोन्स व्हेन इट केम टू द राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ प्लासी है, इट मार्क्स द पॉलिटिकल एंट्री ऑफ कंपनी, ठीक है, और जो बक्सर है, इट कन्फर्म्ड इट्स मिलिट्री सुप्रीमेसी, है ना। सो वील जस्ट लुक एट बोथ ऑफ दीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैटल ऑफ प्लासी, मतलब प्लेस एंड डेट के बेसिस पे देखते हैं। जो प्लासी था, इट टुक प्लेस इन 1757, है ना, पलाशी बंगाल में, ठीक है, और ये बक्सर में हुआ था, ये 1764 में हुआ। एग्जैक्ट डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देख लो, 23 जून और 22 अक्टूबर, बट डोंट बॉदर विद दैट, जस्ट रिमेंबर द ईयर प्रॉपर्ली। देन ब्रिटिश कमांडर कौन थे बैटल ऑफ प्लासी में, इट वॉज रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव वॉज इनफैक्ट द फर्स्ट वन, मतलब ही इज़ द मेन इनिशियल कमांडर ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो कैसे लर्न करेंगे लाइव का नाम, लाइव, इन्होंने ब्रिटिशर्स को लाइव करा, ही मेड देम अलाइव इन इंडिया, ठीक है, ही मेड द ब्रिटिशर्स अलाइव इन इंडिया, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर। और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो थे, ठीक है। सो ये भी याद रख सकते हैं, मुनरो, छोटे होंगे तो मुन्ना, छोटे हैं, ठीक है, मुनरो। देन ओपोनेंट्स कौन कौन थे इनके बैटल ऑफ प्लासी में, इट वॉज सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, है ना। और उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर में तो दे वर कंबाइंड फोर्सेस, ठीक है। तो सिराजुद्दौला को तो पता ही होगा आपको, है ना, अ, इनको शुजा उद्दौला से मत करना कंफ्यूज, ठीक है। सिराज
उद्दौला है, तो हाँ, इनको सिर से लर्न कर लो कि इन्होंने ही डिडंट लेट द ब्रिटिशर्स सिट ऑन हिज हेड, ही हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट देम एंड इसलिए बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है। देन बक्सर में देयर वर थ्री फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मीर कासिम फ्रॉम बंगाल, ही वाज अगेन द नवाब ऑफ बंगाल। देन शुजा उद्दौला फ्रॉम अवध। ठीक है, और एक है शाह आलम टू, हु वाज द मुगल एम्परर। ठीक है, इनको कैसे लर्न करेंगे? देखो, इन्होंने मीर कासिम कासिम, तो इन्होंने कसम खा लिया था कि ही डिडंट वांट ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, तो कासिम में से हो जाएगा शुजा उद्दौला अवध। सो शुजा, तो पहले ही बैटल ऑफ प्लासी में दीज पीपल हैड सफर्ड सेटबैक। उसके बाद वो ऐसे सूझ गए थे, ऐसे मार खाने के बाद सूझ गए और सूझ जाते हैं ना, तो वैसे यू कैन रिमेंबर शुजा उद्दौला। ठीक है, सो स्वोलन, स्वोलन से रिमेंबर कर लो। देन शाह आलम टू, हु वाज द मुगल एम्परर। ठीक है, ये इनके बारे में पता ही है हमको, पर इनका भी लर्न कैसे करेंगे? शाहजहां, ये सब तो शाही थे एक तो ये, फिर शाही थे, पर इनका आलम क्या हुआ? ही हैड लॉस्ट बैटल ऑफ बक्सर, है ना। आलम क्या, कॉन्सिक्वेंस को शायद बोल सकते हैं आलम। ठीक है, सो इवन दो ही वॉज वेरी शाही, बट इनका आलम क्या हुआ? ही हैड लॉस्ट द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी। ठीक है, यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ा सा डिफेक्शन कर दिया था। सो ये जो सिराजुद्दौला का आर्मी वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, बट ही via manipulation Robert Clive was able to override them। ठीक है, नाउ जो बैटल ऑफ बक्सर था, इट वाज अ फुल स्केल ओपन मिलिट्री बैटल, सो नो सच थिंग हैड हैपेंड देयर। देन की कॉजेज क्या है बैटल ऑफ प्लासी के? मिसयूज ऑफ दस्तक। दस्तक क्या था? ड्यूटी फ्री ट्रेड प्रिविलेजेस का नाम था दस्तक, सो उसका मिसयूज़ कर रहे थे इंग्लिश। देन इलीगल फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, है ना, कैलकटा में फोर्ट विलियम का इलीगली दे फोर्टिफाइड इट। देन दे हैड ऑल्सो शेल्टर्ड द नवाब्स एनिमीज। कृष्णा दास करके एक एनिमी थे, उनको दे हैड गिवन अ शेल्टर, सो ही वॉज अगेंस्ट दैट। देन देयर वॉज अ वेरी फेमस इवेंट विच इज़ नोन एज द ब्लैक होल इवेंट ऑफ कैलकटा। ब्लैक होल इंसिडेंट बोलते हैं ना वो। ठीक है, ये फोर्ट विलियम पे हुआ था ब्लैक होल इवेंट इंसिडेंट। सो इसमें क्या करा था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे उनको दे वर पुट इन अ वेरी स्मॉल रूम एंड दस मैनी ऑफ देम हैड डाइड ड्यू टू सफोकेशन एंड वो सब चीज़ों से। सो इसको बोलते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट। कब हुआ था ये? 1756 में। उसके अगले साल ही वी हैड द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और इनका और क्या लर्न करना है? एक तो दस्तक, मतलब इसको कैसे लर्न करेंगे वर्ड को? दस्तक, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। यहाँ तो लग रहा है सिंपल है ना, वहाँ जाके ऐसे इतना सारा एंशियंट मिडीवल पड़ा रहेगा, यू विल गेट कंफ्यूज कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, सो दस्तक क्या डॉक्यूमेंट को बोल सकते हैं? डॉक्यूमेंट से लिंक कर लो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट दस्तक, सो इट वॉज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइडेड फ्री ट्रेड मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टाइप था। ठीक है, और एक कृष्णा दास भी लर्न करना है हमको कि कृष्णा दास वॉज एन एनिमी ऑफ द नवाब एंड दैट इज़ वाई वो प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो कृष्णा, आप लॉर्ड कृष्णा से लर्न कर लो इनको। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा से नवाब को यू कैन रिमेंबर। ठीक है, दे वर नॉट ऑन द सेम पेज। ठीक है, अलग अलग रिलीजन के, तो ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। देन बैटल ऑफ बक्सर देखते हैं। देयर वाज कंटिन्यूड यूज मिसयूज ऑफ दस्तक्स। ठीक है, दस्तक का मिसयूज होते रहा, दैट इज़ वाई दिस वाज कैरिड आउट। फिर ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, दैट वाज वन रीज़न। फिर मीर कासिम्स अबॉलिशन ऑफ ट्रांजिट ड्यूटीज़ टू इंश्योर इक्वल ट्रेड। सो मीर कासिम वांटेड कि बस इंग्लिश शुड नॉट बी गिवन प्रेफरेंस, बट एंड दैट इज़ वाई ही अबॉलिश्ड ट्रांजिट ड्यूटीज़ which ensured equal trade, तो उनका monopoly was getting threatened। ठीक है, so that is one reason। Then British demand for preferential privileges and political control, that was they were forcing Mir Qasim quite a lot।
सो ही गॉट रियली फेड अप, चीज्ड ऑफ हो गए, और दैट इज़ वाई ही कैरिड आउट दिस। देन कोर्स ऑफ बैटल देखते हैं। जो यहाँ पे पलासी है, रुक जाओ, दिस इज पलासी एंड दिस वन इज बक्सर। ठीक है, तो कोर्स ऑफ बैटल देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश सक्सेसेस वर इंश्योर्ड बाय बिट्रेयल ऑफ मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ एंड ओमीचंद। सो दीज वर द पीपल हु हैड डिफेक्टेड फ्रॉम सीराजुद्दौला's आर्मी। ठीक है, तो जफ़र को आप ऐसे डफ़र से कर सकते हो लिंक, है ना, इट इज़ राइमिंग विद डफ़र। तो डफ़र मतलब कि नॉट वेरी इंटेलिजेंट, तो ही एक्चुअली वेंट अगेंस्ट इंडियन डिस्पेंसेशन, और वो ब्रिटिशर्स का उन्होंने ही हेल्प देम, सो ही इज़ नॉट वेरी ब्राइट, नॉट अ वेरी ब्राइट पर्सन। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और फिर इन सब के नाम भी देख लेना दो बार, जगत सेठ, राय दुर्लभ और ओमीचंद। सो दीज ऑल्सो आर नेम्स विच यू शुड बी नोइंग। ये जगत के अगेंस्ट चले गए, वैसे कर लो। फिर दुर्लभ पर्सन है ये, ठीक है, ऐसे। फिर ओमी चंद, कि मैं ही चांद हूँ, ऐसे ही इज़ वेरी सेल्फिश, दैट इज़ वाई ही हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। ठीक है, वैसे यू कैन रिमेंबर। देयर वॉज वेरी मिनिमल फाइटिंग एक्चुअली ये वाला बैटल में। इट वॉज प्राइमरली ड्यू टू दिस बिट्रेयल ओनली बाय दे लॉस्ट दिस बैटल। ठीक है, वेराज बक्सर में तो अच्छे से हुआ था, मिलिट्री विक्ट्री था उनका। आफ्टर इनिशियल क्लैशेस allied इंडियन फोर्सेस confronted द ब्रिटिश, है ना, और दिस एंडेड इन अ डिसाइसिव मिलिट्री फॉर द ब्रिटिश। ठीक है, आउटकम्स देखते हैं। सो सिराज उद दौला प्लासी में ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। मीर जाफर वॉज हु वॉज डफर से हमने लिंक किया था, ही वॉज इंस्टॉल्ड एज द नवाब। देन द ब्रिटिशर्स दे गेंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ बंगाल। ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल था अभी बैटल ऑफ प्लासी के टाइम बाद। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, सिंस दे आर डिफीटेड द कंबाइंड इंडियन पावर्स, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, है ना, 1765 में। सो इसके अंडर कंपनी हैड ग्रांटेड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू दीज थिंग ब्रिटिशर्स। ठीक है, और फिर बंगाल में the system of dual government was introduced, wherein company was only concerned with the revenue, whereas Nawab was concerned with administration. तो जो थोड़ा मुश्किल काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट वाज गिवन टू नवाब, और जो प्रॉफिटेबल काम था रेवेन्यू कलेक्शन का, दैट कंपनी केप्ट फॉर इटसेल्फ। नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना, तो इनको कैसे लर्न करेंगे, अल्लाह दे जैसे अल्लाह करके लर्न कर लो, है ना, अल्लाह वो आर मतलब इसके बाद दे बिकेम वेरी पावरफुल इन इंडिया, है ना। ट्रीटी ऑफ बक्सर वॉज द मेन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, है ना। अरे अब वो लोग ही यहाँ पे करेंगे इंडिया में रूल, तो अल्लाह से यू कैन रिमेंबर। ठीक है, फिर किस किस को दिया, बेबी ओ, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, किसने, हेक्टर मुनरो, मुन्ना, छोटे बेबी को वही बोलते हैं, मुन्ना बोलते हैं। हेक्टर मुनरो के अंडर हुआ था, और बेबी ओ वर द एरियाज जिनका दीवानी राइट्स वर ग्रांटेड टू द कंपनी। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। सो वील जस्ट डू द क्वेश्चंस, इसमें कुछ हैव वी लेफ्ट एनी क्वेश्चन, हाँ, सो ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। Consider the following fruits. How many of the above were introduced in India by Portuguese in the 16th centuries? 16th and 17th century. So I think it is all of these, है ना, तीनों हमने पढ़े हैं। So answer will be all three. ठीक है, this was a tough question. मैं काफ़ी टफ क्वेश्चन है, कुछ भी सवाल पूछ लिया मतलब। ठीक है, अब who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? So due को पोर्चुगीज़ को किसने दे दिया था, इट वॉज बहादुर शाह। ठीक है, सी रहेगा ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज और वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजापति रूलर्स। अच्छा, और क्या दिया है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सल्तनत। ठीक है, और
The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. नहीं, देखो विजयनगर एम्पायर कब टाइम पे थी, अपने पोर्चुगीज़ के टाइम पे, ठीक है। सो दिस मे बी करेक्ट और रॉन्ग। देखो वैसे तो उनका वो है पूरा, विजयनगर एम्पायर 1400 से 1600 के टाइम पे था। सो देखो ये वाला, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यू हैव टू यूज़ वो जनरल और स्पेसिफिक वाला मेथड, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा स्पेसिफिक है, कौन सा स्टेटमेंट, और विच वन इज़ मोर जनरल, ठीक है। तो जनरल जेनरिक सा जो स्टेटमेंट रहेगा, दैट हैज़ मोर चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट, ठीक है, एज कम्पेयर टू अ वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। यहाँ क्या दिया, द डच हैड एस्टैब्लिश देयर वेयर हाउसेज ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड्स granted to them by गजापति रूलर्स। सो देखो दिस इज़ अ फैक्ट, है ना, गजापति रूलर्स। सो ये फैक्ट है, तो देर इज़ अ चांस ऑफ दिस बीइंग रॉन्ग। फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में हमको पता ही है कि ही वॉज द वन ऑफ द मेजर, क्या बोल सकते, ही वॉज वन ऑफ द पर्सन्स हु हैड लेड टू द एक्सपेंशन एंड, मतलब पोर्चुगीज स्ट्रेंथ का, ही वॉज वन ऑफ द मेजर पर्सन्स बिहाइंड इट। सो दिस कैन बी करेक्ट, ठीक है, इवन दो ये भी थोड़ा सा है, और बीजापुर भी हमने सुना था इसके बारे में। सो देर आर चांसेस ऑफ दिस बीइंग करेक्ट, ठीक है। तो वन रॉन्ग होना चाहिए, तो अगर वन रॉन्ग है, सो द आंसर विल बी टू, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला है, ये हमारे लिए डाउटफुल है, बिकॉज ये थोड़ा इन्होंने ऑब्सक्योर सा फैक्ट दे दिया है कि उन्होंने विजयनगर से लिया था ज़मीन, ठीक है। सो थर्ड का अगर नहीं पता है, सो फर्स्ट दो में हमने देखा, सो फर्स्ट इज देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट बीइंग रॉन्ग, ठीक है। सो दैट शुड बी द आंसर, है ना। सो एज यू कैन सी, इस वाले क्वेश्चन में अ कॉम्बिनेशन ऑफ गेस वर्क एंड, मतलब इंटेलिजेंट गेसिंग एंड योर ओन जो पढ़ के गए हैं, बोथ ऑफ दोज आर बीइंग अप्लाइड हियर, ठीक है। सो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, है ना। थैंक यू, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू।